चलिए आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर लोकसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मैं विधेयक पूरा स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 18 श्री अर्जुन मुंडा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 1989 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 19 श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, with your permission, I rise to move for a leave to introduce the bill further to amend the Mines and Mineral Development Regulation Act 1957. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, एनके प्रेमचंद्र जी। Sir, I strongly oppose this bill, Mines and Minerals Development Amendment Bill 2023. It is against the principles of federalism, and it is for privatizing the atomic minerals, mining and mineral separation, privatization for the big corporates, and it is adversely affecting the public sector undertakings like IRE, KMML, TTP and all these. So it is for the privatization for the multinational corporations. It is affecting the security and the safety of the nation, and it is against the federal principles because item number 23 in Schedule 7 of the Constitution, it is violation of the state government's authority so as to give the mining license for the mineral separation and the mining license. So I strongly oppose this bill. Please withdraw this bill. Don't give the permission because it is unconstitutional, ultra violates the state's rights. So I totally, strongly oppose the bill in introducing this bill. Sir, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, the clear position is that introduction of the bill can only opposed under the Rule 72 on the ground of legislative competence. This House has full legislative competence, sir. The Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 was enacted under the exclusive power of the Parliament under entry number 54, list 1, that is central list under 7th schedule, sir, to the Constitution of India. As regards the contention of member who is opposing introduction of bill, it is stated that the power vested under entry 23 of the list 2 is subject to the provision of entry 54 list 1 with respect to the regulation and development under the control of the union. As such, no objection can be raised on the legislative competence of the parliament on this subject matter. Through this bill, government only intends to make certain amendments in the Parent Act of 1957. Moreover, at this stage, discussion on merit cannot happen. Therefore, I urge to allow to introduce the bill, sir. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill, sir. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Introduce the bill, sir. श्री आइटम नंबर 11 दानवे राव साहेब पाटिल। 3/2023 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई रेल मंत्रालय के संबंध में अनुमोदन की मांगे पर 23-24 रेल संबंधी स्थायी समिति की 14वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर ये बयान दे रहा हूँ। रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न है। क्योंकि ये वक्तव्य बहुत लंबा है, इसलिए मेरा अनुरोध है
बारीकी से पढ़ा हुआ समझा जाए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा है कि लगातार हंगामे की स्थिति को देखकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब 2 बजे तक के लिए ये जो लोकसभा की सदन की जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि कारगिल युद्ध में जो तमाम जवान शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद में विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हो रही थी उसको लेकर लाया गया था, जिसके बाद में विपक्ष की ओर से ये बात कही जा रही थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो इसका जवाब दे, लेकिन वहीं पर सरकार ये कह रही कि गृह मंत्री अमित शाह इसका जवाब देंगे और इसी को लेकर लगातार 4 दिनों से हंगामा हो रहा है। और ऐसे में 2 बजे तक के लिए ओम बिरला लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है।